ओके, सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको बता दूं कि थर्ड यूनिट का जो आपका क्विज और असाइनमेंट है वो अपलोड कर दी गई हैं मॉडल के अंदर। तो आप एक बार जाके देख लीजिएगा। सिर्फ देखना ही नहीं, उसको करना भी है कंप्लीट। 8 तारीख का आपके क्विज का असाइनमेंट की लास्ट डेट है, और क्विज का जो है लास्ट 12 तारीख का है। तो जाइए और अटेम्प्ट करिए उसको। So let's begin now. Okay, today the topic which we are going to communicate you all is advertising agencies. As from unit number third onwards, the topics are based completely upon your communications. As the name itself suggests, the subject name, consumer behavior and marketing communications. So marketing communication is nothing but the advertising management. So unit third onwards, we have the concept related with the advertising. In the previous slides, the previous classes, we have talked about the basic part of advertising management, the role and concept. Role today we are going to discuss about. So the basic part we are completed in the last classes. Today we'll be discussing with advertising agencies. Advertising agencies, you might have heard about the term. When a company usually forecast their messages, their communication contains. Now, all the time, I would not say all the time, in a maximum time, it is not possible to advertise by the company's end itself. They take the assistance and the help of the other agencies, the communication agencies, who creates the communication packages to the companies according to their needs, their overall product characteristics, and the target audience, the market reach. Some other parties are there who creates the ad content on behalf of the companies. So these agencies, these firms are known as the advertising agencies. If it is a smaller company, like if a retail outlet which is located in the city, then it is not required to advertise with the large advertising agencies because of the size of the enterprise. एक छोटी सी अगर मैं बात करूं कि अगर एक ग्रोसरी की शॉप है, एक मिठाई की शॉप है, या कोई क्लोथिंग स्टोर है, तो वो इतना उसका बजट नहीं होता, या उसकी मार्केट रिच की उतनी बड़ी गोल नहीं होती है कि दी फर्म विल टारगेट टू एडवर्टाइज देयर सेल्स विद द बिग एडवर्टाइजिंग फर्म्स. So it is not possible all the time. If your business size is very narrow, or your customer target richness target is very low, then yourself decides the ad. The ad is decided by yourself. But when we talk about the big firm, where there is a large goal to cover the market, to make your product reachable to the huge audience, the target customers, then yes, it is needed to advertise yourselves with some advertising agencies, advertising firm. So advertising firms or agencies are nothing but the well specialized communication firm who
creates your advertising content in such a creative and standard manner that influence the target audience of yours. एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एक स्पेशलाइज एजेंसीज होती है जिसका काम ही होता है कि आपके कंपनी के लिए आपके जरूरतों के हिसाब से आपको क्रिएटिव एड बना कर दे, अपीलिंग एड बना कर दे, और वो एड फर्दर आप जब किसी कम्युनिकेशन मीडिया के जरिए आप कम्युनिकेट करेंगे तो आपकी जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो जाए, जो मार्केट कवरेज के ऑब्जेक्टिव है, लार्ज सेल के ऑब्जेक्टिव है, वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। तो ऐसे एजेंसीज को हम कहते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। Many firms usually take the help of these firms. These firms are usually located in different cities, especially the large cities, where company approach them to advertise their products or prepare their contents, the creative contents that is to be communicated to the target audience. So these agencies are called the advertising agencies. समझ गए यहाँ तक? Is it okay to all of you? Advertising agency is a specialized firm which Yes, create, sir. which prepared the communication matters, the content of a company that is to be circulated, to be forecasted amongst their target customers. तो जिस हिसाब से कंपनी का जो जरूरत है, जिस हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट को इनहेंस करना चाहता है, उसके हिसाब से एक क्रिएटिव एड बनाकर वो देती है कंपनी को, अपने क्लाइंट को, और वो फिर मार्केट में फर्दर कम्युनिकेट होता है किसी मीडिया के जरिए। अब एडवर्टाइजिंग एजेंसी आजकल के समय में अगर हम बात करें तो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रह गया है, लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ आपके लिए एड कंटेंट तैयार करता है, बल्कि आपके बिहाफ पे और अलग फंक्शंस भी करते हैं। अलग फंक्शंस कहने का मतलब है कि अगर आप कहते हैं कि भैया मेरे लिए एक मार्केटिंग रिसर्च कर दो, और रिसर्च के बेसिस पे जैसा कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट निकल कर आती है उसकी जरूरतों के हिसाब से ऐड बना कर दो, तो उसी हिसाब से आपको पैसा पे करना पड़ेगा कंपनी को। वो आपके लिए मार्केट को एक्सप्लोर करके, मार्केट के अंदर क्या पोटेंशियलिटी है, मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या है, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, या कस्टमर कौन सी चीजें ज्यादा पसंद करते हैं, उसको सर्वे करके, उसको रिसर्च करके, एनालाइज करके अपने एंड से वो आपके लिए एक अट्रैक्टिव एड पैकेज बनाकर दे देगा। आप चाहते हैं कि हमारे लिए जो है मीडिया का भी सिलेक्शन कर दे, ठीक, मीडिया का सिलेक्शन और एड एजेंसी का सिलेक्शन दोनों अलग अलग फंक्शंस हैं। एड एजेंसी का काम तो आपके लिए एड बनाना होता है, लेकिन आजकल के समय में कंपनी के पास यूजुअली या तो इतना ज्यादा टाइम नहीं होता, या वो अलग अलग एफर्ट नहीं लगाना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, एड एजेंसी को अप्रोच करते हैं। एड एजेंसी आपके एड कंटेंट को बनाने के अलावा, आपके लिए रिसर्च करने के अलावा, अगर आपकी जरूरत है तो आपके लिए वो मीडिया का भी सिलेक्शन कर देता है। कौन सी मीडिया में दिखाया जाना चाहिए, कौन सा ज्यादा लिक्रेटिव होगा आपके कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए, कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल होगा, जिसकी कॉस्ट कम हो और ज्यादा इनहेंस हो, उसके हिसाब से वो मीडिया के साथ भी उसकी एक नेगोशिएशन होती है, और आपके बिहाफ पे वो मीडिया का सिलेक्शन। आपको सिर्फ क्या करना है, पैसे पे करना है। आप जितनी सर्विसेज चाहेंगे एड एजेंसी के साथ, एड एजेंसी के पास सारे फंक्शंस अवेलेबल है, हर अलग अलग कैटेगरीज के लिए, हर अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो अलग अलग चार्ज करेगा। तो डिपेंड करता है आपके कंपनी के ऊपर कि वो अपने एडवर्टाइजिंग के लिए या कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या करवाना चाहती है किसी एड एजेंसी से। वो आपके लिए ऐड बनाकर भी देता है, आपके लिए मीडिया का भी सिलेक्शन कर देता है। आप कहेंगे कि भाई मेरे बिहाफ पे मेरे ब्रांड को इंडोर्स करने के लिए किसी बड़े सेलिब्रिटीज, किसी स्पोर्ट पर्सन या ऐसे मॉडल का सिलेक्शन कर दो जो कि हमारे ब्रांड को ज्यादा एनहेंस कर देंगे। यस, उनके पास वो भी एक टाइप है सेलिब्रिटीज के साथ, या वो अपने बिहाफ पे आपके लिए सेलिब्रिटीज का भी सिलेक्शन करके देते हैं जो आपके ब्रांड को इंडोर्स करते हैं, आपके ब्रांड को प्रमोट करने का काम करते हैं। कुल मिला के कंपनी को सिर्फ क्या करना है, सिर्फ पैसे तैयार रखने हैं। जिस तरीके का फंक्शन चाहिए, कम्युनिकेशन फंक्शंस, जिस तरीके का एक पब्लिक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना चाहती है, वो एड एजेंसी कर देगी। तो एड एजेंसी इज नॉट लिमिटेड ओनली फॉर क्रिएटिंग द एड्स पैकेजेस टू द कंपनी, बट देयर आर n number of services which are offered by these agencies when it is required by the customer. See, all functional are optional,
एक चीज मैंडेटरी है कि एड कंपनी आपके लिए एड बना कर देती है, क्रिएटिविटी ला कर देती है, एक कंपलसरी है। अब ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि सिर्फ उसको एड कंटेंट बनवाना है या इसके अलावा और भी सर्विसेज अवेल करती है। अगर वो सर्विसेज अवेल करना चाहती है तो एजेंसीज के पास ऑप्शंस हैं, आप पैसा पे करिए, वो आपके बिहाफ पे ये सारे फंक्शंस कंप्लीट कर देगा। So these kind of specialized and creative and the communication agency is recognized as advertising agencies. यहाँ तक समझ में आ गया? कुछ पूछना हो? Any questions till the point? अपूर्व, बहुत दिनों बाद अपूर्व आए हो आज लगता है। यस सर, वो तबीयत खराब हो गया था थोड़ा सा। अच्छा, आप ठीक हो? यस सर। चलो ठीक है, ओके। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। यहाँ पे जो आपके डेफिनेशन है उसको पढ़ लेते हैं। एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी ऑफन रेफर्ड टू एज अ क्रिएटिव एजेंसी और इन शॉर्ट एड एजेंसी is a business dedicated to creating, planning, and handling advertising and sometimes other forms of promotion and marketing for clients। वो सारी चीज़ जो हमने बताया कि अदर जो फॉर्म्स ऑफ प्रमोशन जैसे हो गया, तो भाई आपके लिए रिसर्च कर देगी, आपके लिए कैंपेनिंग भी कर देगी, आपके ब्रांड को इंडोर्स करने के लिए अपने बिहाफ पे वो क्या करेगी। जैसे एक एग्जांपल आपको देते हैं कि ऐसे कई जो मीडिएटर्स हैं, एजेंसीज हैं, जो आपकी कंपनी को मार्केट में प्रमोट करती है। जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के एडमिशन कैंपेन चलते हैं। एडमिशन कैंपेन चलते हैं तो अब स्पेशली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए भी ऐसे एड एजेंसीज होते हैं जो क्या करते हैं कि इंस्टीट्यूशन के जो प्लस पॉइंट है या जो ओवरऑल अचीवमेंट्स है उसको फोरकास्ट करती है या उसके लिए ऐड बनाती है। साथ ही साथ उसके लिए अलग अलग शहरों में जाकर कैंपेनिंग, एडमिशन कैंपेनिंग करती है, कैंप लगवाती है, अपने स्टाफ मेंबर को वहां पे बिठाती है और आपके जो इंस्टीट्यूशन का है उसको वो प्रमोट करती है। वहाँ पे आपके जो एडमिशन सीकर्स हैं उनको इंटरटेन करती हैं, उनको कोर्सेज के बारे में बताती हैं, प्लेसमेंट्स के बारे में बताती है, फीस की जो उनकी जरूरत है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, जो कॉलेज है वो सिर्फ पैसा दे रहा है, लेकिन वो एजेंसी जो है आपके बिहाफ पे आपका प्रमोशन भी कर रही है। तो कुल मिला के आप एक बीइंग ए कंपनी, आपको सिर्फ क्या करना है, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट यू नीड टू पे द फीस टू दीज काइंड ऑफ फर्म, और ये आपके बिहाफ पे सारा काम करती है। These agencies initiate all the efforts for selling the product of the client. They have a group of people master in particular fields, thus assigning the companies or organization to reach their target audience in a easy and simple way. अब इन एड एजेंसी के अंदर जो काम करते हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स वहां पे बने होते हैं, अलग अलग स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं। वो आपके क्रिएटिव राइटर्स होते हैं, आपके ऐड के अंदर क्या क्रिएटिविटी डालना चाहिए, आपके ऐड के लिए कौन सी पंच लाइन सुटेबल होगी, आपके ऐड के लिए कौन सा पर्टिकुलर सेलिब्रिटी जो है ब्रांड को ज्यादा इनहेंस कर सकती है, आपके ब्रांड को कौन सा सेगमेंट है, आपकी प्राइसिंग है, आपकी क्वालिटी है, क्वांटिटी है, कस्टमर रिलेशनशिप है, कौन सी चीज ज्यादा अपीलिंग बना सकती है, वो भी वो तय करते हैं। तो उनके पास जो क्रिएटिव पीपल है, अलग अलग उनके पास सेक्शंस बने हुए हैं और आपके ऐड के लिए वो अपनी क्रिएटिविटी लेकर आते हैं। वो क्रिएटिविटी कौन यूजुअली लेकर आता है? हम जैसे लोग जो मैनेजमेंट करके जाते हैं या जो बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं यू नो किसी एड थीम को प्रिपेयर करने में, या उनके माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ एक कंसेप्ट चलता रहता है। जैसे आप बीइंग ए स्टूडेंट, आप में भी कई लोग ऐसे के पास कई क्रिएटिविटी होगी, आप विद इन अ फ्यू मिनट्स आप किसी कंपनी के लिए ऐड तैयार कर सकते हैं। हम यूजुअली जैसे एड मेकिंग कंपटीशन करते हैं, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन करते हैं, तो उसी बहुत सारा चीज सामने निकल कर आता है, आपकी क्रिएटिविटी दिखती है कि ये जो लड़का है, स्टूडेंट है, अगर कल को रह के किसी एड एजेंसी में क्रिएटिव कंटेंट का काम करेगा तो बहुत अच्छा करेगा। तो हम जैसे लोग ही, आप जैसे स्टूडेंट जो है ऐसे एड एजेंसीज के लिए काम करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास क्रिएटिविटी है, आपके पास नॉलेज है, चीजों को एक नए तरीके से पेश करने की जो है एक कला है, और इस चीज को एड एजेंसी कैप्चर करते हैं और आपको इस तरीके से वहां पे एक एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो कई मल्टीपल स्पेशलाइज लोग हैं जो कि आपके एड कंटेंट को तैयार करते हैं, आपके बिहार पे प्रमोशन करते हैं। आप रिसर्च टीम है जो आपके बिहार पे रिसर्च करके देते हैं एंड ब्ला ब्ला।
The next one is the work of tailor is to collect. एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है, एग्जाम्पल है, ये डेफिनेशन है। ये कहता है कि जिस तरीके से एक जो टेलर होता है, टेलर मास्टर, जहाँ पे हम अपने कपड़े देते हैं, रॉ कपड़े देते हैं स्टिचिंग के लिए, वो क्या करता है कि आपके कपड़े के हिसाब से या आपके शरीर के हिसाब से, आपका जब मेजरमेंट होता है, आपके कपड़े की साइज के हिसाब से वो सारा का सारा डिसाइड कर लेता है मिनटों में कि आपका कपड़ा कैसा बनेगा। अब हर अलग अलग लोगों की अलग अलग जरूरतें होती है। कोई किसी तरह का डिजाइन चाहता है, किसी का शरीर कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, उसके हिसाब से वो क्या करता है, आपकी मेजरमेंट लेने के बाद और आपके कपड़े की मेजरमेंट के बाद पूरा का पूरा डिसाइड कर लेता है कि कपड़ा किस तरीके से सिली जानी है, कौन सी डिजाइन इसके अंदर निकलेगी, कैसा बनेगा। सिमिलरली जो एड एजेंसी है, एक टेलर की तरह ही होता है कि आपके अपने जरूरतों को देखते हुए, आपकी कंपनी की जरूरत क्या है, जो कम्युनिकेशन वो करना चाहता है कस्टमर्स के लिए, उसमें क्या जरूरत है उसको, क्या वो प्राइसिंग फैक्टर्स को दिखाना चाहता है कि मार्केट के अंदर जो स्टैब्लिश होने की कोशिश कर रहा है, या एक उसकी अलग सेलिंग प्रपोजिशन है जो कि दूसरों से उसको अलग करता है, मार्केट में उसकी जो पोजीशनिंग है वो अलग है। तो कंपनी जिस चीज को इनहेंस करना चाहती है वो सिर्फ एड एजेंसी को बता देती है। एड एजेंसी अब अपने तरीके से उसके लिए एड बनाएगी, उसके लिए वो कंटेंट तैयार करेगी जैसा कंपनी ने चाहा है, जैसे कंपनी की जरूरत है अपनी, और वो बनाकर फर्दर जो कंपनी को वो हैंड ओवर कर देगी। या अगर कंपनी कहती है कि नहीं, इसको एडवर्टाइज भी करवा दो मीडिया के जरिए, तो एडवर्टाइज भी करा देगी। आपको सिर्फ अपनी जरूरतें बनानी है, वो चीजें कस्टमाइज हो जाती है। वहां पर जो एड एजेंसी है आपकी जरूरतों को कस्टमाइज कर देती है और अपने तरीके से आपके लिए एक अट्रैक्टिव एंड एनहांसिंग एड तैयार करती है। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया गया कि जस्ट लाइक अ टेलर मास्टर जस्ट कलेक्ट द रॉ क्लोथ्स फ्रॉम द कस्टमर्स, एंड डिपेंडिंग अपॉन द ओवरऑल स्पेसिफिकेशन लाइक द body shape, the size of the clothes, and the fabrications, they prepared a design, the stitching design for the customers. Now let's talk about the different roles of an ad agencies. हमने पहले ही बहुत कुछ बता दिया, अब ये उसी चीज का एक समरी है कि एक एड एजेंसी कौन कौन से डिफरेंट रोल परफॉर्म करती है, उसके डिफरेंट फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। तो वो सारे फंक्शंस या रोल्स हैं, इस तरीके से है। पहला है creating an advertised matter on the basis of information collected about product. The same thing as we have discussed few minutes back कि भाई आपकी जरूरतों के हिसाब से आप क्या करवाना चाहते हैं एड एजेंसी से। आप अपने नए प्रोडक्ट का जो इनोवेशन आया है उस इनोवेशंस को आप ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं, तो उसके अंदर क्या जो तरीका है एड मेकिंग, एड मेकर्स अपनाएगा, किस तरीके से दिखाएगा कि दिस इज समथिंग डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द अदर्स। मार्केट में गाड़ियां जो आती हैं, फोर व्हीलर्स या टू व्हीलर्स की नई एक टेक्नोलॉजी आती है, या मोबाइल फोन का टेक्नोलॉजी आता है, वो अपनी टेक्नोलॉजी को इन एड एजेंसीज के जरिए ज्यादा क्रिएटिव बनाती है। जैसे आप देखिए, जब कोई कार की नई मॉडल आने वाली होती है तो उसको पूरी तरीके से अनवेल नहीं करते, वो सिर्फ उसके कुछ स्पेशल स्पेसिफिकेशन को हाईलाइट करते हैं या उसको कवर करके रखते हैं। मार्केट में कंपनी क्या करती है, जैसे उसको कार को निकल कर ले चले आती है, वो अभी लॉन्च नहीं हुआ है लेकिन उसको पूरा कवर अप करके रखती है। अब कवर करने के बाद कस्टमर को पता नहीं चलता है कि इसके अंदर क्या चीजें हो सकती है, कैसा डिजाइन होगा, तो एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है और कस्टमर उसको वेट करने लगता है कि कब आएगा ये कार, ताकि इसको हम देखें और अगर जरूरत पड़े तो खरीद लें। तो ये सारी की सारी क्रिएटिविटी कहाँ से आती है, ये एड एजेंसी का एक अपना तरीका है। एड एजेंसी कंपनी को सजेस्ट करती है, अपने बिहाफ पे ऐसा करवाती है। जब वो मॉडल सामने चली आती है, जब उसका फाइनल ऐड आ जाता है, तो भी वहां पे जो एड एजेंसी ये किसी पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टीज को है उसको हाईलाइट करती है, जिस चीज को कंपनी चाहती है। कि कंपनी चाहती है कि हमारा इनोवेशन उसको बताइए कि मार्केट में बिल्कुल फर्स्ट टाइम है और अभी किसी के पास नहीं है। तो कुछ ऐसे अट्रैक्टिव पंच लाइन आपके लिए क्रिएट कर दिया उस इनोवेशन के लिए, या उसके अंदर ऐसे क्वालिटी को हाईलाइट कर दिया जो कि दूसरों से आपको अलग कर देती है। तो कहने का मतलब ये है क्रक्स में कि जस्ट
according to the need and specification of the company. When the ad agency come up with the creative ideas to promote your brand in the market to the target audience, then this is the main rules. This role is not something which is performed by the company itself. So the creativity is completely decided by the ad agencies itself. आपके बिहाफ पे आपने पैसा दिया, फीस पे किया, और उसके हिसाब से एक क्रिएटिव कंटेंट वो बनाकर आपके बिहाफ पे ब्रॉडकास्ट कर डूइंग रिसर्च ऑन द प्रोडक्ट एंड कंपनीज एंड रिएक्शंस ऑफ द कस्टमर्स। नाउ दो तरीके हैं। अगर आप बहुत बड़े फर्म हैं तो आपके पास अपनी रिसर्च टीम खुद से है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D जिसको कहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज अपने लेवल पे रखती है, उसका खर्चा बेयर करती है। कई कंपनीज होती हैं कि भाई एक अलग से हम रिसर्च एजेंसी खोलने के बजाय उनको थ्रू आउट द ईयर हम जो है सैलरी एंड कंपनसेशन दें, उनका मेंटेनेंस देखें। उससे अच्छा ऐसा करते हैं कि ऐसी कोई दूसरी पार्टी है उसको हम जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, और कुछ पैसे देकर जो हमारी जरूरत होगा उसके हिसाब से हम अपने कंटेंट को तैयार करवाएंगे या रिसर्च करवाएंगे। तो इससे फायदा क्या है कंपनी को? आज के समय में जितने भी इस तरीके के जो आउटसोर्सिंग होती है कंपनी की, वो उसका सिर्फ एक कारण होता है कि पैसा बचाना। आप मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, आपका सब्जेक्ट ये है। कंपनी रिसर्च एंड इनोवेशन सालों भर करती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि रिसर्च करने के लिए आपको उसको फुल टाइम एक रिसर्च डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश करना पड़ता है कंपनी में, और वो रिसर्च टीम जो है पूरे साल भर का सैलरी लेते हैं या जो भी उनकी इंसेंटिव है वो लेते हैं। अब मान के चलिए कि पूरे साल भर में मुझे एक रिसर्च करनी है, और एक रिसर्च के बाद हमें कोई डिसीजन लेना है या प्रोडक्ट की अपनी जो लॉन्चिंग डिसाइड करनी है, तो इसके लिए मैं पूरे महीने, पूरे 12 महीने की सैलरी क्यों दूं? मैं क्या करता हूँ, ऐसे एड एजेंसी को पकड़ लेता हूँ और जिसको कहता हूँ भैया मेरे लिए इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या मार्केट एक सर्वे करके ला दो, और जो उसकी आपकी फीस होगी हम आपको दे देंगे। तो एड एजेंसी आपके लिए मार्केट रिसर्च करा भी देती है। वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर आपके लिए रिसर्च का काम कर देती है। एक लमसम जो फीस होता है वो ले लेती है। पूरे साल भर का पैसा इस तरीके से बचा लेती है सिर्फ कुछ महीनों का देकर। तो यस, आपके बिहाफ पे द एड एजेंसी आल्सो परफॉर्म द रिसर्च एक्टिविटीज टू डिसाइड अबाउट योर फर्दर steps or decision to be taken. Third है planning for kind of media to be used, when and where to be used, and for how prolonged to be used. Media आपके बिहाफ पे आपकी जरूरतों के हिसाब से वो डिसाइड करेगी। आपका एड टीवी पे आना चाहिए, टीवी पे आना चाहिए तो कौन से चैनल आपके लिए अच्छा होगा। चैनल अगर है तो किस पिक टाइम पे उसको दिखाना चाहिए। चैनल्स तो कई हैं। अब रात के 12 बजे अगर आपका ऐड आता है, 1 बजे ऐड आता है, तो कोई नहीं देखेगा, उसके चार्जेस बहुत कम लगते हैं। तो आपके जरूरतों के हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा मीडिया सुटेबल है, ज्यादा पॉपुलर है, किसके चार्जेस कम है, कि कौन सा जो है प्रीमियर टाइम पे आपके ऐड को दिखाता है, कितने ज्यादा उसके जो चैनल के टारगेट ऑडियंस हैं, या चैनल को कितने लोग देखता है, टीआरपी उसकी कितनी है। ये सारी की सारी चीजें, ये जितना भी लफड़ा है, ये सारा एड एजेंसी खुद अपने बिहाफ पे देख लेता है। बस पैसा चाहिए उसको। तो yes, on behalf of the company, if the company ask the media to be selected by ad agency, yes, it is possible. The ad agency decides the media platform for you, for the company, for broadcasting your ad. Collecting the feedback from the client as well as the customers, and then thinking the further line of actions. प्रोडक्ट जब लॉन्च हो गया या लॉन्च होने से पहले का जो फीडबैक हम कस्टमर से क्रिएट करते हैं, तो ये सर्विस भी एड एजेंसी देने को तैयार है कि भाई हमारी प्रोडक्ट लॉन्च तो हो गई, लेकिन हम कस्टमर्स के ओपिनियन या रिव्यू को जानना चाहते हैं, और इसके लिए आप मेरे बिहाफ पे रिसर्च कर दीजिए, क्लाइंट्स के जो है फीडबैक कलेक्ट करके एनालिसिस करके दे दीजिए कि मेरा प्रोडक्ट जो है मार्केट में अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो आपके बिहाफ पे वो क्या करता है, फीडबैक भी कलेक्ट करके देता है, रिसर्च करके देता है, जो भी एनालिसिस के जरिए जो डाटा होता है वो आपको प्रोवाइड कराता है। अब उस एनालिसिस के बाद कंपनी डिसाइड कर लेती है आसानी से कि आपका जो कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस मार्केट में कैसा है, आपकी जो स्टैब्लिशिंग है मार्केट में कैसी बनी या नहीं बनी, ये सारा का सारा कंपनी आसानी से डिसाइड कर लेता है।
अब सवाल ये है कि कोई कंपनी जो है किसी एड एजेंसी को क्यों हायर करती है या उसके क्या फायदे हो सकते हैं। फायदे तो ऐसे हमने कई गिना दिए, लेकिन फिर भी देयर इज अ क्वेश्चन दैट व्हाई कंपनी डू नॉट टेक केयर देयर कम्युनिकेशन फ्लो, देयर कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग बाय themselves, why they takes the help of the other ad agencies। तो रीजन कुछ इस तरीके से है कि ऑल कंपनीज कैन डू द वर्क बाय देमसेल्फ, दे कैन क्रिएट एड्स, प्रिंट और एडवर्टाइज देम ऑन टेलीविजन और अदर मीडिया, they can manage the account also, then all the why do they need help of advertising agencies? So the explanations behind it are as follows। कुछ reasons हैं जो कि बुलेटिक पॉइंट में आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रीजन है, कारण है जिसकी वजह से कोई एड एजेंसी हायर की जाती है कंपनी के द्वारा। पहला कहता है कि the agencies are expertise in this field, they have a team of many people for different functions like planner, copywriter, art directors, creative राइटर्स एंड एवरीथिंग। अब आप एक बताइए कि ये सारे डिपार्टमेंट एक एड एजेंसी के अंदर अलग अलग तरीके से होते हैं, क्या आप अपने बिहार पे अपने कंपनी की तरफ से इतने सारे डिपार्टमेंट अपने एड के लिए बना सकते हैं क्या? आपको कंपनी को बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा इस चीज के लिए। अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि एक हम एड एजेंसी या एड डिपार्टमेंट बनाए तो हो सकता है, लेकिन पैसा बहुत ज्यादा आपका लगेगा। आप अपने लिए एक क्रिएटिव कंटेंट राइटर लिखेंगे, एक जो है एड प्लानर को आप डिसाइड करेंगे, कॉपी राइटर भी होता है उसको आप एम्प्लॉयड करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो इससे आपका खर्चा भी बढ़ेगा, आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा, और पूरी जो मेंटेनेंस है वो जिम्मेदारी है जो आपकी यहाँ हो जाएगी, रिस्क आपका ज्यादा बढ़ेगा। तो एक पहला कारण ये है कि इन सारे लोगों को कॉन्स्टिट्यूट करने या फिर एक अलग डिपार्टमेंट तैयार करने के बजाय हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली एड एजेंसी का हेल्प लेते हैं, जो कि ये सारे काम हमारे कुछ जो एक मिनिमल फीस को लेकर कर देता है, और जो हमारे लिए रिस्क फ्री होता है या कॉस्ट बर्डन हमारे लिए नहीं होता है। तो ये पहला कारण है किसी एड एजेंसी को हायर करने का। दूसरा कहता है कि the agencies confirm optimum use of these experts, their experience and their knowledge। आपकी कंपनी के अंदर अगर स्पेशलाइज्ड लोग होंगे ना, तो वो क्या है कि अपने तरीके से काम करेंगे, जो उनकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसका वो मिनिमम इस्तेमाल करेंगे, मैक्सिमम आप उससे नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि कुछ गिने चुने ही लोग हैं आपकी कंपनी के अंदर जिनके पास क्रिएटिविटी वाला काम है, तो आपको डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर एड एजेंसी के पास जाते हैं तो हर काम के लिए अलग अलग लोग मौजूद हैं जो अपने फील्ड में माहिर हैं। कंपनी उनको हायर ही इसलिए करती है क्योंकि वो क्रिएटिव हैं, उनके पास नॉलेज, स्पेशलाइज नॉलेज है, क्रिएटिविटी की डिग्री है, और उनका काम ही सिर्फ एड बनाना है, एड के अलावा कुछ नहीं करते। तो आपसे ज्यादा इनहैंस लोग हैं वहां पर जो कि एक एड को बहुत बेहतरीन तरीके से क्रिएट कर सकती है कम से कम पैसे में। लेकिन आप अपने एंड से करेंगे तो मे बी आप एक अच्छे जो कंटेंट डेवलपर का सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है, एड मार्केट से रिलेटेड आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास ये इस चीज की नॉलेज नहीं है कि भाई कौन सा जो क्रिएटिव आदमी है हमारे लिए किस तरीके का एड बनाएगा। तो आप कहने का मतलब है कि लॉस है कंपनी के लिए, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होता है एड के प्रिपरेशन से लेकर उसके डिजाइन से लेकर उसके ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड सब कुछ। तो वो एक स्पेशलाइज्ड फर्म है और क्या करता है, आपके एड को बहुत स्पेशलाइज तरीके से बनाता है। इसीलिए ये रीजन है कि हम ऐसे एड एजेंसी को हायर करते हैं। They act with an objective and are very professionals. They are professional. Professional means what? They are meant for their work, their specialized work. उनके पास मिस्टेक्स के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो ऐसे कई कंपनियों के ऐड बनाते हैं अलग अलग टाइम में अलग अलग जरूरतों के हिसाब से। तो मिस्टेक के चांसेस बहुत लो होते हैं। हायरिंग देम रिजल्टिंग इन सेविंग द कॉस्ट ऑफ दी सम एक्सटेंट। ये चीज हम पहले बता रहे हैं कि कॉस्ट सम एक्सटेंट नहीं, बहुत ज्यादा बचा सकते हैं जब हम थर्ड पार्टी का हेल्प लेते हैं, किसी एड एजेंसीज का हेल्प लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम एड एजेंसी के पर्सपेक्टिव से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक उनका मेन फंक्शंस क्या क्या होता है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी क्या क्या होती है किसी भी एड के लिए। पहला जो है
अट्रैक्टिंग क्लाइंट्स। अट्रैक्टिंग क्लाइंट का मतलब है कस्टमर नहीं है, क्लाइंट का मतलब है कंपनी, एडवर्टाइजर, जो कि ऐसे एड एजेंसीज को एड देती है बनाने के लिए। तो उनके लिए वो कस्टमर ही हो गए। एक एड एजेंसीज के लिए जो कंपनी होती है वो क्लाइंट हो गया, वो कस्टमर हो गया। अब कस्टमर तो आसानी से अट्रैक्ट नहीं होता है। तो जिस तरीके से कंपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए कस्टमर्स के लिए अट्रैक्टिव ऑफर्स लेकर आते हैं या कुछ अलग हटकर काम करने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से एक जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने क्लाइंट्स यानी जो कंपनी है उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए अलग अलग पैकेजेस तैयार करती है। वो क्लाइंट है। तो मार्केट में कंपटीशन है, कंपटीशन एक एड एजेंसी तो है नहीं, ऐसे सैकड़ों एड एजेंसीज हैं जो कि अलग अलग तरीके से कंपनीज को इन्फ्लुएंस करती है। तो वहां पर भी उनके लिए ये जरूरी हो जाता है कि कंपनी को या एडवर्टाइजर को कैसे हम अपनी ओर खींचे, या कैसा या हम स्पेशलाइज्ड एड बनाकर दें जो कि कंपनी हमसे बार बार बनाए, या अपने रेट्स को मिनिमम रखें, या हमारे जो रिलेशनशिप है कंपनी के साथ मिनिमम रखें, या हम उनको ये कहें कि अब सिर्फ ऐड का पैसा दीजिए, हम आपके बेसिस पे आपके बिहाफ पे मीडिया का भी सिलेक्शन कर देंगे, वो फ्री होगा। या कुछ ऐसी सर्विसेज जो कि क्लाइंट्स को यानी कि जो कंपनी है उसको अपनी ओर खींचे, अट्रैक्ट करे। ये उनका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, यानी कि पब्लिक रिलेशंस। किसी भी एड एजेंसी के लिए पब्लिक रिलेशनशिप उतना ही जरूरी है जितना जरूरी एक कंपनी को कस्टमर्स के लिए पब्लिक रिलेशनशिप डेवलप करने की जरूरत होती है। तो चूंकि जो कंपनी है वो क्लाइंट है, कस्टमर है, उसके लिए पब्लिक रिलेशनशिप बनाना हर एडवर्टाइजिंग एजेंसी का काम है, और वो इसको अच्छी तरीके से करती है। अकाउंट मैनेजमेंट। अकाउंट मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे वो फाइनेंशियल अकाउंट नहीं है, बुक ऑफ अकाउंट नहीं है। अकाउंट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक कंपनी की जरूरतों के हिसाब से जो डायरेक्टर है एड एजेंसी का, जो हेड है इंस्टीट्यूशन का, वो डिसाइड करेगा कि इस एड के हिसाब से कौन कौन से एक्सपर्ट लोग जो है एम्प्लॉयड किए जाए। डायरेक्टर तो भाई स्पेशलाइज आदमी है, उसके पास बहुत सालों का अनुभव, एक्सपीरियंस है। तो इजिली डिसाइड कर सकता है कि कंपनी की जरूरतों के हिसाब से दीज आर द स्पेशलाइज्ड पीपल इन माय फर्म जो कि इस काम के लिए डेवोटेड हो सकता है या इस काम के लिए अप्रोप्रिएट हो सकता है। तो दैट इज कॉल्ड द अकाउंट मैनेजमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द एग्जैक्ट नीड ऑफ द क्लाइंट्स। The head of the institution decides the responsibility of the expert team that is there with their firm. Creative team, हर एड एजेंसी के पास सबसे जो हम कहेंगे कि रॉ मटेरियल के बाद ही एक अच्छी प्रोडक्ट बनती है, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनती है। तो हर एड एजेंसी की जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है क्रिएटिव टीम, यानी कि वहां पे ऐसे लोग ही एम्प्लॉयड होंगे जो कि क्रिएटिव हैं। अगर मैं कहूं कि आई हैव एन एमबीए डिग्री, जस्ट एम्प्लॉय मी इन योर एड एजेंसी, दे विल नॉट हायर मी। और मैं समझता हूँ कि अगर एक आपके एमबीए बैच में 60 लोग हैं, तो 60 में से 2-3 लोग ही ऐसे होंगे जिनके पास एक क्रिएटिव माइंड होगा। क्रिएटिव माइंड का मतलब होता है कि हर कंपनी के जो है जो जरूरतों के हिसाब से एड तैयार कर देना, या उनके लिए एक थीम डिसाइड करना, एक अच्छी स्केचिंग कर लेना, सब कुछ कर लेना। तो वो क्रिएटिव टीम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी कंपनी एड एजेंसी का, और उसको एम्प्लॉयड करना, उसको हायर करना, उसको ट्रेन करना एड बनाने के लिए। तो ये तीसरा काम हो गया रिसर्च। यस, कंपनी के बिहाफ पे उनकी जरूरतों के हिसाब से मार्केट रिसर्च करेगी और जो एनालाइज डाटा है वो कंपनी को देगी ताकि कंपनी एक डिसीजन मेकिंग को इम्प्लीमेंट कर सके। तो रिसर्च का काम है। मीडिया प्लानर, कंपनी के बिहाफ पे डिसाइड करना कि प्रिंट मीडिया ज्यादा अच्छा है, या कंपनी की अगर रिचनेस ज्यादा है तो टीवी पे ऐड करेंगे, या उसको वेबसाइट के अंदर प्लेस करना है, या उसको होर्डिंग्स के अंदर करना है, पेपर के। So deciding the right kind of media according to the nature of the ad and the target of customer richness decided by the company. Advertising budget, yes, this is one of the important consideration कि कंपनी की अपनी जरूरतों के हिसाब से उसका अलग बजट बन सकता है। अब बजट मैनेजमेंट भी तैयार करना एड एजेंसी का काम है कि कंपनी कहती है मेरे लिए ये भी काम कर दो, मेरे लिए एड भी बना दो, मेरे लिए मीडिया का भी सिलेक्शन कर दो, उसका रेट अलग होगा, मेरे लिए सेलिब्रिटी भी ला कर दे दो, उसका रेट अलग होगा, या जो भी उनकी जरूरत है या जो उनकी लेंथ या साइज है एड की, उसके हिसाब से वो बजट तैयार करके कंपनी को देगी, प्रपोजल देगी। कोऑर्डिनेशन,
कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि एड एजेंसी का जो कांटेक्ट है वो मीडिया वालों से भी है, सेलिब्रिटीज से भी है, गवर्नमेंट से भी है, पब्लिक रिलेशनशिप इंस्टीट्यूशन से है। सभी लोगों के पास उसकी एक एक कोऑर्डिनेशन है। सभी लोगों के साथ वो मिलकर काम करता है ताकि एक कंपनी की जरूरतों के हिसाब से वो एग्जैक्ट कांटेक्ट करके अप्रोच करके क्लाइंट की जरूरतों को पूरा कर दे। तो दैट्स द कोऑर्डिनेशन। सेल्स प्रमोशन, कंपनी कहती है कि मेरे भी यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट भी करो, तो आपके लिए वो प्रमोशनल टेक्निक डिसाइड करता है। जैसे कहने का मतलब है कि ऑफरिंग्स हो गए, डिस्काउंट्स हो गए, आपके लिए एड कैंपेनिंग कर दिया, आपके लिए एक स्पेशल ऐसा ओकेजन प्रिपेयर किया जिसमें कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदे। तो ये जो एड को प्रमोट करने के लिए सेल्स प्रमोशन के जो तरीके हैं वो भी आपके यहाँ पे वो डिसाइड करता है, ये उसकी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पब्लिक रिलेशंस, कस्टमर से फीडबैक लेना, कस्टमर की जरूरतों को समझना, कस्टमर्स की प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करना, उसके हिसाब से सोल्यूशन देना, ये भी उनका काम है। इसके अलावा कुछ अलग नॉन एडवर्टाइजिंग फंक्शंस हैं जो कि एड एजेंसी करती है अगर जरूरत पड़े। तो वो क्या है कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस को भी डिसाइड करती है, डिस्काउंट क्या होना चाहिए वो डिसाइड करती है, प्रोडक्ट की डिजाइन कैसी होगी, ये भी काम आज के समय में एड एजेंसीज करती है। कहने का मतलब है अगर कंपनी चाहे तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ दी सिर्फ प्रोडक्शन को छोड़कर लगभग सारा काम एड एजेंसी परफॉर्म करती है अगर आपकी जरूरत है तो। प्राइस भी फिक्स कर सकती है। यू डोंट हैव आइडिया कि व्हाट शुड बी द राइट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज टू बी लॉन्च्ड इन द मार्केट और दैट compete with your competitors, but the ad agency is having the exact knowledge। उसको पता है मार्केट के बारे में कि अगर इतना प्राइस रखेंगे तो आपका प्रोडक्ट बिक सकता है, आपके कॉम्पिटिटर इतने हैं, तो वो चीज उसको पता है, स्पेशलाइज नॉलेज है। तो अगर जरूरत है तो आपके लिए प्राइस भी फिक्स कर देता है, आपके लिए डिस्काउंट ऑफर या सेल्स प्रमोशन के तरीके भी वो डिजाइन कर देता है, ट्रेडमार्क भी डिसाइड कर देता है, कंपनी का लोगो क्या होना चाहिए, उसकी पंच लाइन कैसी होनी चाहिए, पैकेज के अंदर लेबलिंग क्या होगी, पैकेजिंग का स्टाइल कैसा होगा। Everything is decided by the ad agencies if it is required by the company। इट्स ऑप्शनल, सारी चीजें जरूरत नहीं है कि वो करेगी, लेकिन अगर एक कंपनी की जरूरत है तो ये सारी चीजें फुलफिल होती है एड एजेंसीज के थ्रू। तो ये सारे जो हैं आपके एड एजेंसीज के डिफरेंट रोल फंक्शंस हो गए। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं इसके अंदर तो यू आर इनवाइटेड टू डू सो। Any query, questions, suggestions that comes to your mind, you all are invited। सर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज उसके मीडिया को भी चूज कर सकती है ना कि हमको किस तरीके से एडवर्टाइज करना चाहिए। अगर हमें नहीं कंपनी को नहीं समझ में आ रहा है तो बोल सकती है ना कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज उसको एडवाइस दे सकती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम पहले बता चुके हैं कि अगर उसको पता नहीं है कि किस मीडिया के अंदर ज्यादा स्ट्राइकिंग करेगा हमारा ब्रांड, या किस मीडिया के अंदर हम इसको अगर दिखाते हैं तो ज्यादा मेरे लिए फायदे होगा, तो वो आपके लिए डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि उसके पास नॉलेज है, उसके पास मार्केट की पूरी नॉलेज है, कौन सा चैनल कितने टाइम पे कितने समय तक दिखाना चाहिए जो कि कंपनी को ज्यादा इनहेंस करे, उसके पास एक्सपर्ट नॉलेज है। जैसे कहने का मतलब है कि कंपनी कहती है कि हमको टीवी पे ऐड करना है, लेकिन टीवी पे किस चैनल के पास करें, किस टाइम में करें, हमको आइडिया नहीं है इसके बारे में। अब आप बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा अच्छा होना चाहिए। जैसे हम किसी दुकान में जाते हैं, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, आपको बहुत सारा कपड़े देख लेते हैं, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कहते हैं कि भैया जो है मेरे कलर के हिसाब से या मेरे हाइट के हिसाब से आप प्लीज कोई एक अच्छा सा कपड़ा डिसाइड करके दे दीजिए। तो वो क्या करता है सेलर, एक कोई सा कपड़ा आपके लिए ले आता है और कहता है कि सर ये आपके लिए बहुत सूटेबल, आप इसको खरीद लीजिए, और आप उसको खरीद लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से है कि आपको कपड़ा तो खरीदना है लेकिन आपको कलर पसंद नहीं आ रहा या कंफ्यूज कर रहे हैं, तो आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सेल्स पर्सनल हैं। इसी तरीके से एड एजेंसी के अंदर अगर आपको एड दिखाना है, आपको पता है कि टीवी में दिखाना है, लेकिन अब कौन सा टीवी कितने समय पे दिखाना है, कौन से ब्रांड एम्बेसडर को हम इसमें लगाएं जो हमारे प्रमोशन में ज्यादा हेल्प करेगा, नहीं पता है, तो वो एजेंसी आपको सजेस्ट करेगी कि ये आपके लिए अच्छा होगा, या जो है इतना पैसा लगाएंगे तो आपके लिए हम ये काम कर देंगे। तो वो भी काम एक एड एजेंसी करती है।
ठीक है पर यस सर। और अलग सर क्वेश्चन? सर इसमें तो एग्रीमेंट बनता होगा ना सर, एडवर्टाइजिंग कंपनी और मतलब और जो कंपनी कराना चाह रहे उसके बीच में। क्या बनता है? सर ये जो कह रहे हैं कि जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है और जो कंपनी जो है कि अपना प्रमोशन कराना चाह रहा है, जी जी, तो हाँ बोलो। दोनों के बीच में एग्रीमेंट बनता होगा ना सर। सब चीज का एग्रीमेंट ऑब्वियसली। यहाँ पे कुछ भी काम जो है वो इनफॉर्मल तरीके से नहीं की जाती है। दोनों ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको एक वो पूरा प्रपोजल देती है। प्रपोजल के बाद एग्रीमेंट बनता है। उस एग्रीमेंट में दोनों पार्टीज के जो साइंस होते हैं, उनके जो कंडीशंस होते हैं, और उसको पूरा करने के बाद भी जब भी जहाँ पे बड़े जो कंपनीज की बात करते हैं, तो कोई भी काम बिना वो रिटन डॉक्यूमेंट्स के नहीं करता है। हर चीज के अंदर वो रिटन डॉक्यूमेंट तैयार करता है। सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन कभी भी नहीं होता है। प्रोफेशनल इम्प्लीमेंटेशंस में ओरल कम्युनिकेशन का कोई रोल नहीं है। तो जिस तरीके का फंक्शंस एग्जीक्यूट कराना चाहती है कंपनी, वो सारा का सारा एक प्रपोजल बनेगा, उसके बीच एक एग्रीमेंट होगा और दोनों पार्टी की साइन होगी, और उसके बाद ये काम पूरा होता है। ठीक है? यस सर, थैंक यू। और अदर क्वेश्चंस? अच्छा ठीक है, आप लोग जो है जो असाइनमेंट फिर से कह रहे हैं, असाइनमेंट और जो क्विज है पोस्ट कर दिए गए हैं, एक बार जाके देखिए और उसको करना शुरू कर दीजिए, है ना? यस सर। आपका, हमको लगता है कि एग्जाम तो शायद अब जनवरी में हो रहा है क्या? यस सर, ऐसा कुछ लगता है, देखिए क्या होता है। चलो जनवरी तक होगा, तब तो क्लास भी हमको लगता है दिसंबर तक चलेगा तुम लोगों का। यस सर। अच्छा, चलो ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू सर। Thank you, sir.